नमस्कार दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं जीपीएमसी न्यूज 24/7 लाइव। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा भारतीय संस्कृति के उत्थान एवं 2026 नए साल का स्वागत के लिए एक भव्य दीप यज्ञ का आयोजन किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने और नए साल 2026 के स्वागत के लिए एक भव्य दीप यज्ञ का आयोजन किया। बुधवार 31 दिसंबर 2025 को रात 8 से 10 बजे तक अहमदाबाद नरोड़ा के फॉर्चून फैमिली सोसाइटी में गायत्री परिवार द्वारा एक भव्य और सुंदर दीप यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा भारतीय संस्कृति को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया था। आप इसकी सुंदर झलक देख सकते हैं। जीपीएमसी न्यूज 24/7 लाइव अहमदाबाद नरोड़ा। कार्यक्रमની શુભ શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી કરીશું। બહુ સરસ। ઓમ અગ્નેનાય સુપધારાય अस्मान विश्वानि देवायुनानि विद्वान् यो दस्मजुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमः उक्तिं विधेम। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। वडीलोनो खूब खूब आभार, धन्यवाद। हवे कार्यक्रम शुरू करिए ए पहला अहींया जे 3 दीकरीओ आवी छे एनो थोड़ो परिचय आपी दઉં। आप सौने अखिल विश्व गायत्री परिवारनी जे मुख्य जग्या छे हरिद्वारमां, जेने आपणे शांतिकुंजना नामथी ओळखीए छीए। तमे घणा बधा आमांथी जई आवेला छे। हमणां ज नीरुबेन अरिंदभाई ना बधा हमणां दिवाળી पर ज कंईक जई आव्या हता। खूब सरस मजानुं धरती परनो स्वर्ग कहेवाय एवुं सरस मजानुं धाम छे शांतिकुंज। गंगानो किनारो छे, हिमालयनी छाया छे, ऋषिओनी तपोभूमि के जे जग्याए विश्वामित्र आदि 7 ऋषिओए तप कर्युं हतुं वर्षो पहेला ए भूमि पर बनेलुं शांतिकुंज छे। शांतिकुंज द्वारा ज बाजुमां एक मोटी जग्या लईने त्यां देव संस्कृति विश्वविद्यालय आवी एक युनिवर्सिटी जे वर्ल्ड क्लास युनिवर्सिटी छे, ज्यां दुनियाभरमांथी हवे विद्यार्थी भणवा माटे आवे छे अने त्यां बीए बीकॉम बीएससी सिवाय पण योग दर्शन, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र विज्ञान, प्राणिक हीलिंग एटले के प्राण चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान આવી ઘણી બધી આપણી ઋષિ મુનિઓની બનેલી જે બ્રાન્ચીસ છે એમાં પણ ત્યાં છોકરાઓ અને છોકરીઓ ડિગ્રી, ડિપ્લોમા અને માસ્ટર ડિગ્રી કરવા માટે ત્યાં ભણવા માટે આવે છે। અહીંયા આપણી પાસે 3 દીકરીઓ છે એ અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી, કોઈ યુપીમાંથી, કોઈ એમપીમાંથી, કોઈ દિલ્હી, એમ અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી, પણ એમણે બીએસસી વિથ યોગા સાયન્સ એટલે योग સાયન્સમાં બીએસસી કર્યું અને ત્યાર પછી અત્યારે માસ્ટર ડિગ્રી એમએ વિથ योग સાયન્સ એ ડિગ્રી હવે લગભગ પૂરી થવાય। પણ શાંતિકુંજમાં આપણે વિદ્યાલયનો એક નિયમ છે કે જે કોઈ દીકરા દીકરી ત્યાં ભણવા આવે પરમેનન્ટલી ત્યાં રહેવાનું અને બિલકુલ ગુરુકુલની જેમ સવારે 5 વાગે ઉઠવાનું, રાત્રે સુવો ત્યાં સુધી આખો દિવસ ગુરુકુલની પરંપરા પ્રમાણે ત્યાં ભણવાનું હોય છે। જેમ કૃષ્ણ ભગવાન જેમ સાંદીપની ઋષિના આશ્રમમાં ગયા હતા અને ભણ્યા હતા, જેમ રામચંદ્ર ભગવાન વિશ્વામિત્ર ऋषिના આશ્રમમાં જઈને ભણ્યા હતા, એમ સંપૂર્ણ ગુરુકુલમાં રહીને આખી ભણવાની વ્યવસ્થા છે સરસ મજાની। અને ભણ્યા પછી તરત સર્ટિફિકેટ નથી આપવામાં આવતું। ભણી રહ્યા પછી 3 મહિના ફિલ્ડમાં જવાનું, ક્ષેત્રમાં જવાનું અને ક્ષેત્રમાં ગામે ગામ જઈને ઘર ઘરે જઈને આવા નાના મોટા પ્રોગ્રામો કરવાના અને લોકો સાથે મળવાનું, એમના અનુભવ લેવાના। છેલ્લા 15 દિવસથી આપણા ત્યાં અમદાવાદમાં છે છોકરીઓ અને હજી બીજા 15 દિવસ રહેવાની છે, એટલે 1 મહિનો એમની ટ્રેનિંગ અહીંયા ચાલશે। તો સવારે એક સ્કૂલમાં ગયા હતા, ત્યાં વિદ્યાર્થીઓને યોગા કરાવ્યું। બપોરે વળી એક અલગ જગ્યાએ ગયા હતા, ત્યાં તમારા કરતા પણ વધારે બહેનો હતી અને એમને કોઈને ઘૂંટણનો દુખાવો છે તો કોઈને કમરનો દુખાવો, કોઈને ડોકનો દુખાવો ને કંઈકનું કંઈક
તો એ બધાને એક્યુપ્રેશરની સારવાર અને પ્રાણિક હિલિંગ દ્વારા સારવાર, તો એ બધી ટ્રીટમેન્ટ આપી તે ઘણા બધા લોકોને એના લાભો મળ્યા. પણ હવે સમયની મર્યાદા છે એટલે હવે આપણે રાત્રે અત્યારે દીપ યજ્ઞ માટે અહીંયા તો સવારે 5 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી રોજ એમને આરામ જ નથી મળતું. પણ છતાં એમની ઈચ્છા છે કે ના, અમે વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચીએ, વધુમાં વધુ સોસાયટીઓ સુધી જઈએ અને નવી જનરેશનને પણ ખબર પડે કે દીપ યજ્ઞ શું છે, આપણી સંસ્કૃતિ શું છે, આપણા ઋષિઓ શું છે, ગાયત્રી મંત્ર શું છે, ગાયત્રી યજ્ઞ શું છે, દીપ યજ્ઞ શું છે, આ બધું સમજાવવાની એમને બહુ જ ઉત્સુકતા છે. તો આવી 3 દીકરીઓ પોતાના ઘર બહારથી દૂર અહીંયા આવી છે આપણા મહેમાન તરીકે, અને ગુરુદેવની માતાજીની શક્તિ લઈને આવી છે, અને એ શક્તિનો એક અંશ આપણને પણ મળે એવી એમની ખૂબ જ સરસ મજાની ભાવના છે. તો આવો આપણે ફોર્ચ્યુન ફેમિલી વતીથી 3 દીકરીઓનું ભાવભર્યું સ્વાગત કરીએ. કોઈ એક બેન, કોને બોલાવો? તમે બેન આવી જાઓ અને તિલક કરીને 3 દીકરીઓને તમારા સૌ વતીથી તિલક કરીને દીકરીઓનું સ્વાગત કરીશું. પહેલા જે બેન બેઠા છે એનું નામ છે જ્યોતિ. તાળી પાડીશું આપણે બધા. બીજા નંબરના બેન છે દીક્ષા. અત્યારે પીએચડી પણ કરી રહી છે, હજી પરમ દિવસની પરીક્ષા છે, પણ પરીક્ષાની પણ ચિંતા નથી. અને આ ત્રીજી દીકરી છે એનું નામ છે અનુશ્રી. તો 3 દીકરીઓ આપણા ત્યાં આવી છે. ખૂબ ફરી એકવાર તાળીઓથી ગડગડાટથી એમનું સ્વાગત કરીશું દુપટ્ટાથી. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યો નઃ પ્રચોદયાત. બહુ સરસ. ગઈ વખતે હું પણ આવે તો ત્યારે મારું મહેમાન તરીકે સ્વાગત કર્યું. હવે હું મહેમાન નથી, હવે તમારા સોસાયટીનો જ મેમ્બર છે. માની લો પ્રવીણભાઈ પંચાલ આપણે અહીં બેસીને જ યજ્ઞ કર્યો હતો અને ભગવાનની કૃપા થઈ બધું પંચાલ એટલે આપણે ત્યાં જતા રહ્યા હતા. 5 કુંડી યજ્ઞ સરસ મજાનો કર્યો હતો, ખૂબ સુંદર વાતાવરણની અંદર. તો ખેર હવે આપણે આ દીકરીનો વધુ લાભ લઈએ. તો એમને વિનંતી કરીશ કે પહેલા કોઈ એક ગીત ગુરુવંદના યા ગાયત્રી વંદના જોવી, એના પછી આપણે દીપ યજ્ઞનો આગળનો ક્રમ શરૂ કરીશું. चरणों में वंदन, जिनकी कृपा से आज हम सभी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम सभी यहाँ एकत्रित हो सके हैं. तो चलिए गुरु वंदना. गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना. गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना. मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी.
बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, गायत्री माते की, युगाधिपति महाकाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। दीप यज्ञ करना है, दीप प्रज्वलन होगा, पर एक बार दीप यज्ञ का महत्व समझ लेते हैं कि दीप यज्ञ क्यों करा जाता है, किस लिए किया जाता है। जैसे दीप प्रज्वलन हमको पता है कि जैसे हमारे जो भी हमारा आध्यात्म है उसमें हमको बताया गया है हमारे चीज़ों में कि हमको क्या करना होता है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना होता है, अंधकार को मिटा के प्रकाश की ओर जाना होता है। इसीलिए हम लोग दीप प्रज्वलन करते हैं। जैसे घर पे हम पूजा भी करते हैं, छोटी छोटी प्रतिदिन जो हम घर में दीप प्रज्वलन करते हैं ताकि घर का अंधकार मिटे, प्रकाश हो। जैसे कोई भी अच्छी चीज़ होती है, जैसे अयोध्या में श्री राम जी आए थे तो उस समय पे सब लोगों ने क्या किया था, दीप प्रज्वलन किया था। दीप प्रज्वलन के माध्यम से उनका स्वागत किया था। दीप उसके प्रतीक थे कि आज हमारे यहाँ जितने भी दुख थे, जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी कष्ट थे वो खत्म हो रहे हैं, उन सबका अंत हो रहा है और यहाँ पे एक प्रकाश उमड़ रहा है। उसी के प्रतीक थे वो दीप। और आज कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने सारे दीप प्रज्वलन होने वाले हैं तो वो भी इसी का प्रतीक होने वाले हैं कि जो भी किसी को बीमारी रही होगी, पारिवारिक समस्याएं रही होंगी, उनको कहीं ना कहीं दूर करने के उद्देश्य से ही वही मन में भाव रख के आज ये दीप प्रज्वलन हम लोग करने वाले हैं, ये दीप यज्ञ करने वाले हैं। उसके अतिरिक्त जो गुरुदेव ने, हम जैसे बहुत जगह आप देखते होंगे दीप यज्ञ कहीं ना कहीं ये नया हो जाता है। यज्ञ अगर हम सुनते हैं तो यज्ञ कुंड होगा, सामग्रियां होंगी, आहुति देंगे, सबके मन मस्तिष्क में यही एक बोलते हैं ना प्रतीक चित्र बन जाता है यज्ञ के नाम पे। परंतु दीप यज्ञ एक अलग, एक बहुत ज़्यादा विचित्र एक चीज़ हो जाती है कि दीप यज्ञ कैसे हो सकता है, दीपों के माध्यम से कैसे यज्ञ हो सकता है। तो उसी को एक बार समझ लेते हैं कि दीप किसके प्रतीक होते हैं। जैसे दीप की जो ज्योत होती है ना, आपने हमेशा देखा होगा दीप की लौ हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है, ऊपर की तरफ बढ़ रही होती है। उसी तरह हमारा मन साफ हो, हम स्वच्छ हों, हम हमेशा ऊपर की ओर प्रगति करते रहें, हमेशा सद्विचारों की ओर बढ़ते चलें, निरंतर बढ़ते चलें। उसी का प्रतीक होता है दीप और दीप की लौ। और जो गुरुदेव ने दीप यज्ञ का हमको बताया, जैसे कोई भी हम यज्ञ करते हैं, हमारे मन में विचार भी आया कि हम यज्ञ करेंगे तो उसके लिए हमको थोड़ा समय चाहिए होता है, सामग्री जुटानी है, हमको हवन कुंड लाना है, बहुत मतलब हमको ब्राह्मण को बुलाना होगा, बहुत सी चीज़ें, तो उसको समय चाहिए कि अगर हमारे मन में अभी भाव आ रहा है कुछ करने का, अपने आराध्य के प्रति हमको कुछ समर्पित करने का, कोई भी अच्छी खबर है, हमको कुछ मन में भाव आ रहा है तो हम करेंगे कि चलो 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम यज्ञ करते हैं, हमको धन सामग्री जुटानी है, साधन जुटाने हैं सारे। किंतु क्या जो आज भाव है 2 दिन बाद भी वही भाव रहेगा? हो सकता है कुछ और खबरें आए या कुछ और हो, हमारा वो अपना पवित्र भाव ना रहे। तो दीप यज्ञ के माध्यम से गुरुदेव ने यही बोला है कि किसी का जन्म दिवस हो, विवाह का कोई उत्सव हो या कोई भी घर में अच्छी खबर आए, जब भी आपके मन में भाव आए उस समय पे आपको दीप यज्ञ कर लेना है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 दीप कर रखने हैं और उनमें भावों की आहुति देनी है। जैसे एक बात मैं बहुत ये कई जगह पे भी और जगह पे भी मैं ये बात बोलती हूँ कि ये इतना समझने की चीज़ होती है कि हम यहाँ पे आहुति दे नहीं रहे हैं सामग्री की, तो हम यहाँ पे किस चीज़ की आहुति दे रहे हैं? तो हम यहाँ पे भावों की और समय की आहुति दे रहे होते हैं। जैसे अगर हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो क्या है? हमारा समय, क्योंकि वो लौट के नहीं आएगा। धन आएगा भी और जाएगा भी, और चीज़ें आती जाती रहती हैं, किंतु समय कभी लौट के नहीं आता। किंतु आप अगर यहाँ जिस प्रांगण में बैठे हैं, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जितना समय हम यहाँ देके जाएंगे वो कभी वापस नहीं आएगा, उसी समय की। और जो भाव हमारे मन में भी आ रहा है, श्रद्धा का, समर्पण का, अपने इष्ट के प्रति, ईश्वर के प्रति जो भी भाव आ रहा है वो भी कभी, वो भाव फिर कभी नहीं आ सकता जो इस क्षण आ गया। तो इसी भाव की और समय की आहुति हमको दीप यज्ञ के माध्यम से देनी होती है। क्योंकि बहुत जगह पे हमको देखने में आता है, जैसे गायत्री परिवार को अगर हम जाने तो बहुत ज़्यादा विशाल परिवार है, हर तरह के व्यक्ति होते हैं। कुछ होते हैं कि आर्थिक रूप से उतने समर्थ भी नहीं होते कि वो हवन कुंड सामग्री सब चीज़ों की व्यवस्था कर सके, जुटा सके। किंतु अगर मन में भाव आ रहा है तो ये चीज़ नहीं सही हो सकती। किसी के मन में भाव है कुछ उत्सव
करने का, अपने घर में खुशियाँ मनाने का, और एक धन जो है वो एक बोलते हैं ना कि रुकावट बन जाए, वो चीज़ें रुकावट बन जाए, तो उसी चीज़ को खत्म करने के लिए, सबको बराबर का अधिकार देने के लिए गुरुदेव ने दीप यज्ञ का कार्यक्रम, दीप यज्ञ का उत्सव हम सबको बताया कि अगर आपको यज्ञ करना है, आपके पास धन भी उतना नहीं है, आपके पास समय भी अभी हम 2 घंटे 3 घंटे नहीं दे सकते, किंतु हमारे पास भाव है, हमारे पास शुद्धता है, हमारे पास समर्पण है, तो उस समय पे हम दीप यज्ञ करें। यही इसकी विशेषता होती है कि बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा धन सामग्री नहीं चाहिए। हर कोई व्यक्ति कहीं भी जब भी मन में भाव आए, समर्पण आए, उस समय पे हम दीप यज्ञ का कार्यक्रम कर सकते हैं। यही इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता हो जाती है। उसके ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मिन् पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरशुचि ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्ष ॐ पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु प्राणायामः। सभी आचरण कमर गर्दन सीधी कर बैठेंगे। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव चन्दनधारणम्। रोली या चंदन अपनी अनामिका उंगली में ले प्रार्थना करें कि देव शक्तियाँ इन चंदन रोली के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को संस्कारित बना रही हैं। तो सभी चंदन धारण करेंगे, अपनी अनामिका उंगली पर चंदन ले लेंगे और मंत्र के माध्यम से अपने मस्तक को लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरति नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। हमारे साथ मंत्र दोहराएंगे। ओम मस्तिष्कं शांतं भूयात्, हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, इसमें अनुचित आवेश न आने पाए। ओम शेषम् उन्नतं भूयात्, हमारा मस्तक सदा ऊंचा रहे। ओम विवेकः स्थिर भूयात्, इसमें विवेक सदैव बना रहे। चिंतन करना है ना। अब जब जैसे हम उनके गुणों को धारण करना, जैसे अभी हम अपने ईश्वर के समीप बैठे हैं तो उनके गुणों को धारण करना। उनके गुण क्या है? जैसे प्रेम, करुणा, दया, ममता। तो अपने ईष्ट के समीप बैठकर उन गुणों को अपने अंतःकरण में धारण करना, अपने अंतःकरण को शुद्ध करना, वह क्या है? उपासना। फिर आती है साधना। साधना अर्थात अपने आप को तपाना, कठिन परिश्रम, कष्टों को सहते हुए अपने जीवन को तपाना। कहते हैं ना कि अपने जीवन को बहुत तपाने के बाद ही हम एक निखार लेकर आ पाते हैं, है ना। तो वो क्या है? अब हम साधना कैसे करेंगे? जैसे जप, तप, स्वाध्याय अपने जीवन में। एक होता है कि पशु भी अपना जीवन जीते हैं, परंतु उनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। पर हम मनुष्य जीवन है, हमें उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराया है। तो उस हेतु हम लोगों का ये उत्तरदायित्व है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी को अपने जीवन को साधना है और मानव से महामानव बनने की ओर अग्रसर होना है। तो इसी के साथ गुरुदेव ने साधना का क्रम बताया है और फिर आता है उसके उपरांत आराधना। तो आराधना अर्थात अब आपने अपने ईष्ट के समीप बैठकर उन गुणों को धारण किया, है ना, अपने आप को पवित्र बनाया, साधना के द्वारा अपने आप को तपाया, है ना। उसके बाद जब आपने उसमें पूर्णता प्राप्त कर ली, तो अब ऐसा नहीं है कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं, मनुष्य जीवन है तो सिर्फ स्वयं के लिए नहीं,
कहते हैं गुरुदेव कि अपने तक ही कोई चीज सीमित ना रखें, जब तक हम उसे दूसरों के लिए ना करें। अपने लिए किया तो क्या किया, है ना। तो आराधना अर्थात जो भी अब हमारे पास गुण आए, जिससे भी हमें जो बल प्राप्त हुआ, विवेक प्राप्त हुआ, उसे अपने तक सीमित ना रख के सभी जन जन तक पहुंचाना, अपना सहयोग देना किसी भी माध्यम से, तो वो क्या हुआ, आराधना अर्थात जन कल्याण हेतु कार्य। तो उसी के साथ हम सभी एक प्रण लेंगे, साधना, उपासना और आराधना हेतु, और हम क्या करेंगे, संकल्प धारण करेंगे ना। सूत्र तो अभी सभी को क्या करना है, जो महिलाएं हैं वो अपने बाएं हाथ को ऐसे करके पकड़ेंगे। अच्छा, तो सभी कलावे को अपने बाएं हाथ में महिलाएं और एक दूसरे को सभी, और जो बच्चे हैं वो अपने दाएं हाथ में पकड़ेंगे और पुरुष दाएं हाथ। दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा श्रद्धमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आचक हमारे साथ मंत्र दोहराएंगे। ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि। हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं। ओम मर्यादाम चरिष्यामि। मर्यादाओं का पालन करेंगे। ओम वर्जनीयम नो चरिष्यामि। जो वर्जित है वे आचरण नहीं करेंगे। सभी अपने मस्तक से लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कलश पूजनम। कोई एक याचक कलश पूजन करेंगे। इस भाव के साथ पूजन करेंगे। हे देव हमारी श्रद्धा निखारें, हे देव सत् कार्य करने की हमारी प्रवृत्ति उभरे, हे देव भिन्न भिन्न स्वभावों और भिन्न भिन्न योग्यताओं के सत्कार्यों के लिए एकजुट होना सिखाएं। जो भी आज कलश लेकर आए सभी अपने कलश का पूजन करेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले कस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्रगणा स्मृतः कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च सरिता सर्वे कलशन्तो समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिकोशेखरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णु त्वं च प्रजापते आदित्या वसवो रुद्रा विश्वै देवा सपैतृका त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदा तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भवा सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। गुरु ईश वंदना। और अखंड दीप के भी 100 वर्ष हो रहे हैं, तो इस हेतु हरिद्वार में शांति कुंज हरिद्वार वहाँ पे क्या वैरागी दीप पर उनका जो भी कार्यक्रम है वो बढ़ चढ़कर अभी बहुत अच्छे से मतलब वहाँ पर तैयारियां चल रही हैं।
तो उसमें हम सभी को क्या करना है, हम सब आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हम सभी को क्या करना है कि इस जो शताब्दी वर्ष है इसको और अच्छा करने के लिए हम सभी क्या कर सकते हैं। जो माता जी ने, जो गुरुदेव जी ने हमें कुछ अपने जीवन के सूत्र बताए हैं उनको कर सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है ना, सभी लोग गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र जब तो सब करते ही हैं, साथ ही साथ क्या करें उसका लेखन भी, लेखन जैसे बड़े माताएं बहनें है ना सभी करते हैं, परंतु जो छोटे बच्चे हैं हम उनको भी उस शताब्दी कार्यक्रम में उनका भागीदारी करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, हम उनको भी जैसे था ना गायत्री मंत्र लेखन, तो उन बच्चों को भी हम उसमें गायत्री मंत्र लेखन के लिए हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब हम करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी देखेंगे और उसको अपने जीवन में धारण करेंगे। तो गायत्री मंत्र हम लोग नियमित कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह हम लोग अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए आगे। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेषु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्ति स्वरूपाय देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्री गुरवै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चलिए, जब तक यहाँ पे पूजन हो रहा है हम गायत्री की महिमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे गायत्री मंत्र है तो गायत्री मंत्र जो है माँ गायत्री को दर्शाता है ना। तो गायत्री मंत्र की महिमा आप सभी को पता है। गायत्री मंत्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। गायत्री माना जाता है कि जो गायत्री है वो सद्बुद्धि देने वाली है। गायत्री को देवताओं की कामधेनु माना जाता है। कामधेनु कौन होती है? जो आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। जो भी ख्याल आपके मन में आता है, जिस भी चीज़ की आप प्राप्ति करना चाहते हो, अगर आपने वो माँ गायत्री से मांग लिया गायत्री मंत्र के माध्यम से, तो वो आपको प्राप्त हो जाता है। तो गायत्री मंत्र और गायत्री अलग नहीं है। यह सद्बुद्धि की देवी मानी जाती है। इसमें बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि अगर आप गायत्री मंत्र कर रहे हो, माँ गायत्री का ध्यान कर रहे हो, तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी है ना, आपकी जो वातावरण की फ्रिक्वेंसी है वो इतनी हायर हो जाती है, आपकी ऊर्जा का प्रवाह इतना तेज हो जाता है और आपका जो चैतन्य स्वरूप है वो इतना निर्मल हो जाता है, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो वैसे ही गायत्री मंत्र के बारे में थोड़ा और बताना चाहूँगी मैं, जिससे गुरुदेव ने कहा था। आप सभी गुरुदेव को जानते हैं? चलिए, सबसे पहले मैं गुरुदेव के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। गुरुदेव जो है उनका इस धरती पे ही चौथा जन्म था। इसके पहले गुरुदेव के 3 जन्म हो चुके हैं। पहला जन्म था संत कबीर के रूप में, दूसरा जन्म था समर्थ गुरु रामदास के रूप में और तीसरा जन्म था विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी, बिल्कुल सही। तो तीसरा जन्म था रामकृष्ण परमहंस के रूप में और चौथा जन्म जो हम साक्षात देखते हैं अपने गुरुदेव को है ना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में। तो गुरुदेव का जन्म हुआ था आगरा जिले के छोटे से गांव में, आवलखेड़ा नामक एक गांव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। बहुत ही अच्छे परिवार से थे। उनके जो पिताजी थे वो भी पंडित थे। तो उनमें ना बचपन से उनके पिताजी और माताजी ने ऐसे गुण देखे जो एक असाधारण व्यक्ति के होते हैं ना, असाधारण। जैसे हम बच्चे हैं ना, बच्चे के अंदर ऐसे गुण अगर हम बचपन से देख रहे हैं कि वो इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, तो हमें वो बहुत एबनॉर्मल लगेगा कि कैसे है ना। तो धीरे धीरे उनको पहचाना कि ये तो ऐसे नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये कुछ तो है, गुरु सत्ता ने कुछ तो सोच करके भेजा है। तो ऐसे वो बचपन से बहुत साधना करते थे, बहुत तप करते थे। जब वो 8 वर्ष के हुए तो उनके पिता के जो मित्र थे मदन मोहन मालवीय जी, जो हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, तो उनके माध्यम से उन्हें कानों में फूंक करके गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। गायत्री मंत्र की महिमा अपने आप में बहुत है, तो उसे ऐसे नहीं बता सकते थे। और वहाँ पे क्या बोला उनके कान में कि
कि जो गायत्री मंत्र है वो ब्राह्मणों की कामधेनु है। अब यहाँ पे ब्राह्मणों की कामधेनु क्या सोचकर बोला होगा तो मैं आपको बताती हूँ। ब्राह्मण, एक तो ब्राह्मण होता है जो जाति से ब्राह्मण होता है ना, कि आप ब्राह्मण जाति में हो, ब्राह्मण सरनेम हो गया तो वो होता है। लेकिन गुरुदेव ने क्या बताया कि ब्राह्मण वो नहीं जो सिर्फ जाति से ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वो होता है जो अपने कर्म से, अपनी साधना से अपने आप को तपाता है ना, उस लायक बनाता है, वो ब्राह्मण होता है। तो गायत्री को ब्राह्मण की कामधेनु बोला है कि आप जो भी इच्छा करोगे, अगर आपने स्वयं को साधा है, अगर सही दिशा में आप अपने आप को साध रहे हो तो गायत्री का फल आपको फलीभूत हो जाता है, मिल जाता है। तो 8 वर्ष की आयु में उन्हें गायत्री दीक्षा की प्राप्ति हुई। उन्हें दोबारा दीक्षा भी मिली जब वो 15 वर्ष के थे। वसंत पंचमी के दिन वो अपने साधना कक्ष में बैठे हुए थे और वहीं से एक दीपक जला हुआ था। दीपक की लौ से उनके दादा गुरु वहाँ से प्राकट्य हुए, जो हिमालय की गुरु सत्ता मानी जाती है, जो सबसे होते हैं ना, हेड जो होते हैं, है ना, तो वो गुरु सत्ता का वहाँ से प्राकट्य हुआ। उन्हें उनके जो पिछले 3 जन्म थे, वैसे तो जो गुरुदेव थे वो एकदम से डर गए, हम भी डर जाएंगे ना थोड़ा कि ऐसे क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि आप डरो मत। फिर उन्होंने उनके पिछले 3 जन्मों के बारे में उन्हें बताया। फिर गुरुदेव को लगा कि इस धरती पे जन्म अगर हुआ है तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए को लेकर ही हुआ है। तो वो बड़ा उद्देश्य क्या था? एक नया विचार क्रांति अभियान चलाना, पूरे युग को बदलना, विश्व को बदलना, नई दिशा में मोड़ना उनका एक लक्ष्य था। तो उन्होंने खुद सबसे पहले तो खुद को तपाया। वैसे तो उनको पहले से सिद्धि प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने वो सिद्धि का प्रयोग किया। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं माम्। सर्वदेव नमस्कारः। परमात्मा अपने आप को सर्वप्रथम दिव्य शक्तियों के रूप में प्रकट करता है। यह शक्तियाँ ही संसार के नियंत्रण, पालन पोषण और विकास में सहायक होती है। उनकी पूजा द्वारा उन्हें प्रसन्न करना, अपनी प्रिय वस्तुएं उन्हें समर्पित करना, जिससे कि वे विश्व के कल्याण का कार्य निरंतर करती रहती है। हमारा अभ्यास देवत्व की ओर हो, इसी भाव से देव शक्तियों को नमन करें। हिंदी के वचन सुने, संस्कृत के सूत्र दोहराए। आप लोगों को यहाँ से जो हिंदी में बोला जाएगा ध्यान पूर्वक सुनना है। उसके बाद में जो संस्कृत के सूत्र दोहराए जाएंगे वो आपको हमारे साथ में दोहराना है। जो सदा देती रहती है और देते रहने की प्रेरणा प्रदान करती है, उन देव शक्तियों को नमन। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को दिव्य बनाया और हमारे लिए दिव्य वातावरण बनाने हेतु स्वयं को खपाया, उन देव पुरुषों को नमन। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। जिन्होंने अपने आप को जीता और सत्प्रवृत्ति संवर्धन में प्राण प्रण से संलग्न रहे, उन महाप्राणों को नमन। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। तो मंत्रों को दोहराएंगे। ओम महीद्यो पृथ्वी जना इमं यज्ञं मिमिक्षताम पिपित्रां नो बेरेमबे। ओम पृथ्वै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। जल देवता को आवाहन, वरुण देवता हमें शीतलता और सरलता दे। ओम तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्त्रे यजमानो हवेवे अयेडमानो वरुणेन बोधिरुषकं समाने आयु प्रमोषि। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। अग्नि देवता को नमन। अग्नि देवता हमें तेजस और वर्चस्व प्रदान करे। ओम त्वं नो अग्ने वरुण
देवस्य हेयो अवयासेशिष्ठा यजिष्ठो बृहतमाशो शुचानो वेश्या देवा वंशी प्रमुद्यस्मता स्वाहा। ॐ अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वायु देवता को नमन। वायु देवता हमें गतिशीलता और जीवनी शक्ति प्रदान करें। ओम आनो नियोद्भे शातेने बेद्वरः ग्वं सहस्रेणे बेरूप याये यज्ञम वायो अस्मिन् सत्वं मेमेक्षतम् उपयामकयितोऽस्य विश्यां त्वयिष्यते यो निर्माद्वीभ्यां त्वा। ॐ आकाशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं। बधाइयों बधाइयाँ शुभ दिन की बधाइयाँ जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां रोशन हो तुम्हारा ये जहां। सूरज सा रोशन तेरा नाम जहां में जगमगाएगा। मंजिल कामयाबी और आदर्श जीवन सजाएगा। उत्तम पुरुषादे बनो मंजिल अपने तुम पाओ सारा आसमां है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां रोशन हो तुम्हारा ये जहां। बधाइयों बधाइयाँ शुभ दिन की बधाइयाँ जन्म दिवस है तुम्हारा। हर पल सुखदाई हो खुशियों की कमाई हो रोशन हो तुम्हारा ये जहां रोशन हो तुम्हारा ये जहां रोशन हो तुम्हारा ये जहां। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यशस्वी भव। रिहा राही और वेशा को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसे प्रगति राही और वेशा प्रगतिशील हो यशस्वी बने बहुत ऊंचाइयों को अपने जीवन में छुए। यही हमारी बहुत सभी की शुभकामनाएं। भूयश्चान्ते नमोक्तिं विधेम।
शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता स्वीकार कर लो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सविता पावन बना दो हे देव सविता निर्मल बना दो हे देव सविता ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम जीवन पथ चल पाए हम मन का ते मेरा मिटा दे अम्बे मन का ते मेरा मिटा दे अम्बे छवि तेरी लग पाए हम ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे सूरज तेरी ज्योति जगाए चांद उतारे आरती माँ चांद उतारे आरती दीप जलाए अनगिन तारे मांग सवारे भारती माँ मांग सवारे भारती महिमा परंपार तुम्हारी महिमा परंपार तुम्हारी किन शब्दों में गाए हम ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे जीवन पथ चल पाए हम मन का ते मेरा मिटा दे अम्बे छवि तेरी लग पाए हम ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे ऐसी ज्योति जगा जगदम्बे बोलिए गायत्री मात की परम पूज्य गुरुदेव की परम वंदनीय मात की गायत्री मंत्राहुति सभी आ जाए कमर गर्दन सीधी कर दोनों हाथों को गोद में रखकर बैठिए और 11 बार गायत्री मंत्राहुति अपनी आहुति समर्पित करेंगे। आहुति कैसे समर्पित करनी है? भावों की आहुति। गुरुदेव ने बोला है आहुति समर्पित आहुति और समर्पित हमें क्या करना है? भाव और अपने दुर्गुण को। गुरुदेव ने क्या बोला है? अपने एक दुर्गुण को मुझे समर्पित करो और एक अच्छे गुण को धारण करो। तो इसी भाव के साथ हम लोग 11 बार गायत्री मंत्र आहुति करेंगे। सभी आ जाओ कमर गर्दन सीधी कर बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः महामृत्युंजयाय मंत्राहुतिः। आज राही और हेशा का जन्म दिवस है और जिन किसी भाई बहनों का विवाह दिवस है और जैसा कि नया साल हम सभी के समक्ष है और सभी के मंगलमय जीवन के लिए हम सभी 3 बार महामृत्युंजय मंत्राहुति समर्पित करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं नमः कराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः ॐ सजलश्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं नमः अनिष्ट निवारणार्थम अभीष्ट संवर्धनार्थम आहुतिः। विश्वव्यापी संकटों के निवारण एवं मानव मात्र के कल्याण हेतु ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। आज की तिथि में अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हुई थी ना, तो उसी हेतु और आज दीप यज्ञ भी है ना, दिवाली जैसा ही एक पर्व मन रहा है तो है ना, नया वर्ष भी हम सभी के समक्ष है, तो इसी हेतु राम जी का एक भजन हम सभी मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी
निराजनम मारती, एक क्या सभी गुण उस बच्चे के अंदर थे, तो वो महिला बहुत खुश रहने लगी। तो फिर क्या हुआ कि एक बार दोबारा से जब गौतम बुद्ध उस शहर में, उस गांव में आए, तो वो भागती हुई आई और बहुत खुश हुई कि आपने तो हमें बहुत अच्छा मतलब वरदान दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मुझे एक बहुत गुणवान जो है वो संतान की प्राप्ति हुई। तो गौतम बुद्ध ने हंसते हुए बोला कि अच्छा, तो अगर ऐसे पुत्र तुम्हें 5-7 और मिल जाए तो क्या तुम गर्भ धारण करना चाहोगी? तो वो बोली कि अगर मुझे ऐसे पुत्र प्राप्त हुए तो मैं 5-7 बार क्या, मैं बहुत बार मैं ऐसे गर्भ धारण कर लूंगी। तो इससे मतलब ये क्या पता चलता है कि कष्ट उस महिला ने उस संतान की प्राप्ति से पहले अपने जीवन में इतने कष्ट सहे, न जाने कितने वर्षों से परेशान थी, उसके बाद उनको जो संतान की प्राप्ति हुई कष्टों के बाद। तो ऐसे ही उन्होंने उनसे जब प्रश्न किया तो वो उन कष्टों को भूल गए जो कष्ट उनको उन संतान को प्राप्त करने में हुए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हम लोग कितना संसारिक चीजों में बहुत ज्यादा मोह में है ना, मोहग्रस्त, कितनी भी चीजें आ रही है वो आने दें, है ना, जो जिन्होंने हमें दिया है, जिनके एक दिन माटी में मिल जाना, 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 मांझता है रे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। घूमा जीवन बर्तन को खूब सजाया, बना ठना घूमा जीवन बर्तन को खूब सजाया, नाशवान को सब कुछ माना, सत्य समझ ना पाया, नाशवान को सब कुछ माना, सत्य समझ ना पाया। क्रूर काल झपटा तब रोया, क्रूर काल झपटा तब रोया, साथ नहीं कुछ जाना, क्या तन मांझता है, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है, एक दिन माटी में मिल जाना। आत्मा का संतोष न खोजा, खोजा सुख काया का, अंत समय तक समझ न आया चक्कर या माया का, कितना भी हो मोहलाश से, कितना भी हो मोहलाश होगा उसे जलाना, क्या तन मांझता है, एक दिन माटी में मिल, क्या तन मांझता है, एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता है, एक दिन माटी में मिल जाना। दूसरा
जय आपसे। गायत्री माता स्नेहसनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे माँ चरण शरण दीजे बिलख रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे जयत जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दाम्भ दुर्भाव द्वेष हरे दुर्भाव द्वेष हरिये शोध बोध निष्पाप हृदय को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव जल प्रसेचनम् ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तं पावमाने द्विजान आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं मा नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः क्षमा प्रार्थना। जिस प्रकार हम दूसरों से अपनी भूलों की क्षमा की अपेक्षा रखते हैं वैसे ही हमें भी दूसरों के प्रति क्षमाशील रहना चाहिए। दीप यज्ञ कार्य में हुई त्रुटियों के दोष निवारण हेतु सब लोग हाथ जोड़कर यज्ञ भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे। ओम आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यदक्षपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञत्रयादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतं प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्याद्धृति श्रुति सम्पूर्णं स्याद्धृति श्रुति। शुभ कामना। रानी माता के कल्याण की कामना करते हुए सभी लोग परिवार में सुख शांति समृद्धि लेके आए, इसी भावना के साथ सभी लोग अपने लिए और विश्व के सभी प्राणियों के लिए, जन के लिए शुभकामना करेंगे।
भारतवर्ष जगत गुरु बने, इसी भाव के साथ हमारी संस्कृति सदैव ऐसे ही सबको आशीर्वाद देती रहे, क्योंकि होता है ना भारत की संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिर्फ हम सुख ना हो, हमारे आसपास वाले पूरी प्रकृति सुखी हो, शांत हो। इसी भाव के साथ एक बार शुभकामना करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् शतमेधं यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजः आयुष्यमारोग्यं देहि मे अव्यवहानं देहि मे अव्यवहानं शांति अभिसिंचनम। एक याजक कलश के जल से सभी के ऊपर जल की वर्षा करेंगे। ओम देव शांति। सभी याजक हाथ जोड़े। तो भगवान की कृपा पहले ही हो चुकी है, सब पे वर्षा हो चुकी है, सभी का मन अंतःकरण पवित्र हो चुका है। तो पवित्र तो हो गया, शुद्ध तो हो गया, उसमें नई चीज की स्थापना भी तो करनी है। तो सद्विचारों की स्थापना हो, हमारा मन जो पवित्र हुआ है उसमें वो संस्कार मिट गए हैं, उसमें सद्विचारों की स्थापना हो, सभी के लिए शुभ कामनाएं जो हमने अभी मांगी है वो पूर्ण हो। इसी मनोकामना के साथ सभी शांति अभिसिंचन करेंगे। अपने में जो भी अभी हमने यज्ञ किया, जो भी मंत्रोच्चारण किया, उस सबको स्वयं में धारण करने का भाव करेंगे कि वो सदैव हमारे साथ चले, सिर्फ करके छोड़ना नहीं है। उस सारी ऊर्जा को, यज्ञ की पवित्र ऊर्जा को, उन पवित्र भावों को स्वयं में, मन में, वचन में, वाणी में, कर्म में धारण करके हम सदैव इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। इसी भावना के साथ शांति अभिसिंचन। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिश्च शांतिर्भवतु। तो आइए नवा वर्ष की जय। આજે આપણે બધાએ જોયું અને આપણા સાથ સહકારથી આજે આપણા ફોર્ચ્યુન પરિસરની અંદર નવ વર્ષનું આગમન અને ભારતીય સંસ્કૃતિના વિચારોનું उत्थान, दीपक से दीपक जलाने का जो सही टाइम है उसका जो अभी ये प्रयोग हुआ है, तो प्रयोग के अंदर आप लोग की जो भागीदारी सुनिश्चित हुई है, जो आने वाला साल और आने वाला भविष्य भारत देश के लिए और भारतीय संस्कृति के लिए बहुत ऊंची मायना रखते हैं। तो आप ऐसे पवित्र आत्मा है, ऐसे कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। जिसका मन नहीं होता उसको भी वो परम सत्ता ऐसे जहां जहां कार्यक्रम होते हैं उसको वहां खींच के लाती है। क्योंकि आप लोग ऐसे नहीं है, आप ऐसे रीच वानर है, गोप गोपियां और गोपाल है, ग्वाला है। जब 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 भगवान ने इस धरती पर अधर्म बधा और उसका नाश करने के लिए मनुष्य देह धारण किया, तब उसके साथ प्रभु ने कभी उसका श्रेय नहीं लिया। और श्रेय लेने के लिए आप जैसे पवित्र आत्मा को सुना, और आज वही परिस्थितियां चलती है। आज आपने सब प्रज्ञा गीत में भी सुना और यज्ञ गीत के अंदर भी आपने सुना। ये सब एक बताता है कि आने वाला समय के अंदर आप इससे भी आगे बहुत बड़े काम करने के लिए आपका जन्म हुआ है। और आज नहीं, आने वाला समय दिखाएगा कि आप कितने महत्वपूर्ण आप काम कर सकते हो। दूसरी बात है, આજે આપણે અહીંયા જે કંઈ આ કાર્યક્રમ નિમિત્તે આ દીકરીઓ એમના
ઘર બાર છોડી આજે અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી એમની શિક્ષણની સાથે આ સંસ્કાર લઈને આપણા ત્યાં અહીંયા આવી છે, એ આપવા માટે આવી છે. તો ખરેખર આપણા બાળકોમાં પણ આવા જ દિવ્ય સંસ્કારો છે, બીજ પડેલા છે. માત્ર એને પવિત્ર પાણીની અને પવિત્ર વિચારધારાની જરૂરિયાત છે. આપણી પાસે સમય નહોતો આપણા જીવનમાં. આજની જે નવી પેઢીઓ છે એના પહેલાના સમયમાં આજે જે છે એમાં તો મા બાપને એક શ્રમજીવી હતા, એમની પાસે કંઈ જ્ઞાન નહોતું, કોઈ આર્થિક સંપન્નતા નથી. પણ હવેની જે આ નવી પેઢી અત્યારે આપણા ખોળામાં બેઠી છે ને, એ પેઢી માટે બધું જ સુખ સુવિધાઓ સાધનો છે, પણ જો આ સંસ્કાર જો આ રીતે એમાં છાંટવામાં આવે ને તો આ જ દીકરીઓ આવી રીતે જ આપણી દીકરીઓ અને દીકરાઓ પણ એમનામાં જીવનમાં પરિવર્તન લાવી શકે એમ છે. પણ આજે આપણી આ વ્યસ્ત બધી જિંદગીમાં આજે આ જે કંઈ આજે આ વૈભવી દોડની પાછળ આપણે થોડા થોભીએ, વિચારીએ અને સાવધાન બની અને પરંપરાની તુલનામાં વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી અને આપણા ધર્મ સંપ્રદાયની સાથે જો જોડાઈ જઈશું ને તો આપણા બાળકો પણ આવા જ બનવાના છે, એમાં કોઈ મતભેદ નથી. તો કહેવાનો મતલબ એ કે આપણે બધા સમજદાર માણસો છીએ,